Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th Economics, chapter number 7, population. So as you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So before moving on to the today's portion, as usual, let us have a short summarization from the previous video. Previously what we have seen. So previously we have seen about the male and female ratio of India in the various specific years. We have discussed about with the demand table, which means a schedule of the data information. After that we have seen about the gender ratio and we have discussed about the portion of the theoretical manner in a very detailed manner. So let us have a short summarization of that portion in a very detailed manner. We have seen about the male and female ratio in rural India and the urban India. In that, what was the male ratio and what was the female ratio from the year 1951 up to the 2011, we have seen that in a very detailed manner. So in the year 1951, there was a population of 36.11 crore total population in India. From that, if you are seeing in the male, it was 18.55% crore people and the 17.56 crore people were female. So in the percentage, if you are seeing, it was of 51.37% for male and for the female it was 48.63%, which means overall 100%. But when the year passed, after the 40 years, it means in 1991, the total population from 36.11 came to 84.63. in which we have seen the male population of the ratio and the percentage has been increased up to 43.92 for the male and for the female it was 40.71. In the percentage ratio, if you are seeing from 51.37 it came to 51.90 up till 1991, which means it shows there was an increase in the male population. In the female population it came from 48.63 to 48.10, which means 0.50 minus population reduction in the female was being seen up. And after 1991, certainly after the 20 years 2011, in that counting we have seen that from 8463 the population has reached up to 121.02 crore people in the overall population. From that the male population was being seen up for the 62.37 portion and the female was being seen up for the 58.65, which means the increase in the population was being in a huge portion in the male and the female. But if you are talking in the percentage manner, then from the comparatively it came to the 51.54 for male and 48.46 for the female. So comparatively from the 1951 up to the 2011, the percentage if you are seeing 51.37, it increased up to 51.54. It means there was plus 17% increase in the male, but female it was 48.63, which came to the 48.46, which means minus 0.17 reduction was being seen in the female portion. In the analysis we have seen that in a very detailed manner. From this portion we came to know that by the increasing of the population, overall if you are seeing the population is increasing, but the male are increasing more than the female in the India from certain years. This the analysis we can get from the male and female ratios that we have studied. After that we have seen the gender ratio. What is gender ratio? Then gender ratio means it is also known as the sex ratio, which means it shows above for 1000 male how many female are there in particular country. It helps us to see the equality of the male and the female, both gender are there in a very stability manner or that. So in this portion we have seen due to many various and we can say that many social, cultural and political reasons, the female has been seen in a very reductive manner. In every country
country, the stability of the man and female keeping in a very straight line, it has been said. So every 1,000 male, how many females are available? That is also an important portion. Why? For the basic need, you know that the portion of developing the future generation, for that we need marriages and many more portion. So for that the male and female must be on an equal ratio. That's why we know and study about this ratio also in a very detailed manner. But surprisingly, we came to know that in the foreign country and the developed country, the female are more comparative to the 1,000 males. But here in India, if you are seeing, only in Kerala there are for 1,000 male 1,000 and we can say that 1,084 female are there in the Kerala. Except Kerala, all over in the India, the female portion has been seen up in a very less manner. In all that, the least female are got up in the Haryana portion. For every 1,000 male, there is only 879, which means 880 only female are available in that portion. What about the remaining men? They will not get married. What are this portion? About that we have seen in the previous portion in a very brief manner. So today we are going to continue this interesting matter, that what reason and how this can be tackled up. This portion we are going to see up in the today's portion. So let us move on with the today's topic in a very detailed manner in the further topic by the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see up from the above paragraph in a very detailed manner. So furtherly, it has been found from that portion we are going to start up. I am going to read it out, listen it out carefully. It has been found that there are social, cultural, economic factors responsible for the adverse female-male ratio. In Indian society, the status of women has been low since ancient time. Due to attention was not given to the nutrition, health, education and overall upbringing of daughters, the dowry system also contributed towards the neglects of girls. Apart from this, early marriage, frequent childbirths had adverse effect on the health, leading to high death rate among minor and adult females. All this leads to low female population as compared to male. So कहीं ना कहीं हमें ये पता चला है कि हमने जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, इन सारे पोर्शन की वजह से ही मेल फीमेल रेशियो जो है बहुत ही कम देखा गया है. इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते तो पुराने ज़माने से ही वुमेन को यानी औरतों को बहुत ही कम समझा जाता था और उसको उतना स्टेटस दिया नहीं जाता था. इस रीज़न के वजह से उसके खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उसका हेल्थ के बारे में सोचा नहीं जाता था, उसको एजुकेशन भी प्रॉपर वे में दिया नहीं जाता था. इवन जिस तरीके से अपब्रिंगिंग एक डॉटर की करनी चाहिए उस तरीके से होता भी नहीं था. डाउरी सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं लड़कियों को नेग्लेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. लोग डरने लगे. दहेज देने की प्रथा के वजह से लोगों को ये मानना हो गया कि लड़की ना हो वो बेटर है. इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट इंडियन मेंटालिटी के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप होने लगा. इसके अलावा अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी शादी करवा देना और बार बार चाइल्ड बर्थ देना, इस रीज़न की वजह से लड़कियों की हेल्थ बिगड़ के जल्दी मर जाते थे. सो ये सारी चीज़ों की वजह से हाई डेथ रेट लड़कियों का भी देखा जाता था. और माइनर और अडल्ट फीमेल्स, इवन बहुत लड़कियां मरी भी है और कम भी लोग लड़की को प्रेफर करते हैं, ये भी देखा गया था. ये सारी रीज़न के वजह से जितने आजकल मेल देखे जाते उसके प्रपोर्शन में फीमेल हमें देखने को नहीं मिलता. तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में ये सारी प्रॉब्लम रही. इस रीज़न के वजह से लड़कियों की बर्थ जो है वो कम होने लगी, हम ये बोल सकते हैं. सो अब यहाँ पे आता है जेंडर रेशियो इन इंडिया. इंडिया के अंदर कितना जेंडर फीमेल और फीमेल का देखा गया है और एक पर्टिकुलर इंडिया, उसके साथ साथ गुजरात के अंदर कितना, वो पर्टिकुलर ईयर्स का यहाँ पे दिया गया है. सो टेबल की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कीप दिस. ओके, सो अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल जेंडर रेशियो इन इंडिया बताता है, जिसमें से सबसे पहले ईयर दिया गया है. फिर फीमेल जो है इंडिया के अंदर और 1,000 मेल्स के ऊपर फीमेल गुजरात के अंदर कितना है उसका पोर्शन यहाँ पे बताया गया है. सो इन द ईयर 1901 तो इंडिया के अंदर टोटल 1,000 में से 972 फीमेल देखे जाते थे. 1,000 मेल होते थे तो वहाँ पे 972 फीमेल थे और गुजरात के अंदर 954 देखे जाते थे. वैसे ही 30 ईयर्स के बाद 1931 में
जो है 1972 में से अगर आप देखो तो 22 का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। और वही अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 945 जो है गुजरात के अंदर देखने मिलता था। इसका मतलब यहाँ पे भी आप बोलो तो 9 का रिडक्शन देखा जा रहा है। तो मैं यहाँ माइनस में लिखती जा रही हूँ, कितना कम हो रहा है ये आपको पता चले। उसके 30 ईयर्स के बाद 1961 के अंदर 50 में से जो है 1941 यानी -9 का रिडक्शन ओवरऑल इंडिया में देखा गया। और वही अगर सिर्फ गुजरात के अंदर तो -5 का रिडक्शन देखा गया है। 1991 के अंदर वो डायरेक्ट 1927 41 कहाँ और 27 कहाँ, डायरेक्टली वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 15 पोर्शन का रिडक्शन देखा गया है। वी कैन से दैट 16 का रिडक्शन देखा गया है गर्ल्स के ओवरऑल कंटेंट पोर्शन का। और यहाँ पे अगर गुजरात की बात करें 1991 में तो -4 यहाँ पे और हुआ, यानी आप देखो कंटिन्यूअस माइनस में फिगर जाता जा रहा है। और 2001 में 27 में से 933 तक पहुंचा है, यानी वी कैन से दैट +6 हुआ है। यानी ओवरऑल इंडिया में कोई एक स्टेट के वजह से +6 देखा गया है। और वही गुजरात के अंदर और रिडक्शन हुआ तो कितने का हुआ, तो और रिडक्शन -15 का देखा गया है। वही लास्ट 2011 जो सबसे लास्ट रीडिंग है उसके अंदर यहाँ पे +7 का इंक्रीज देखा गया है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ +7 का इंक्रीज देखा गया। और यहाँ पे 21 में से 18 यानी 19, 20 और 21 यानी -3 का रिडक्शन देखा गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ओवरऑल इंडिया के अंदर 2001 से लेके 11 तक थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बट गुजरात के अंदर तो कंटिन्यूअस डिक्रीज देखा जा रहा है। ये हुआ टेबल की बात। टेबल के हिसाब से तो अगर देखें तो इंडिया के अंदर 2001 के बाद थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज फीमेल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, बट गुजरात के अंदर तो कंटिन्यूअसली अभी भी कम हो रहा है। तो ये था सेंसस रीडिंग इंडिया का 2011 का। लेट अस सी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। तो ये कंक्लूजन और एनालिसिस क्या करता है। Between 1901 to 1991, for every 1,000 male, number of female population has been decreasing. But 2001 to 2011 was a period in which female population per 1,000 male increased negligibly thanks to Beti Bachao program and encouragement given to the birth of girl child. So 1901 से लेके 1991 तक देखो, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ तक इधर तक देखो तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस डिक्रीज देखा जाता है। बट 2001 से 2 यानी कि 10-11 ईयर्स तक की बात करते, 10-11 ईयर्स तक जो है पोर्शन इंक्रीज हुआ है। 2001 और 2011 से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 1991 में भी जब रिडक्शन देखा गया, वो भी बहुत ज़्यादा वाला रिडक्शन जब देखा गया, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ का प्रोग्राम स्टार्टअप किया, यानी गर्ल चाइल्ड को बर्थ मिलना चाहिए ऐसा एक प्रोग्राम बेटी बचाओ। तो अगर लड़की हुई तो उसको ये वाला फैसिलिटी मिलेगा, वो वाला फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा एक प्रोग्राम लगा गया। और उस प्रोग्राम की वजह से कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड ज़्यादा बर्थ होने लगे। तो थैंक्स वो बेटी बचाओ प्रोग्राम को, ऐसा यहाँ पे इवन लिखा भी गया। लेट अस सी द सेकंड पोर्शन। इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, द पीरियड बिटवीन 1901 to 2011 saw a consistent fall in female population per 1,000 male, which creates social and cultural implications. If we discuss the reason behind this, it can be found out that the craze or for preference for male child and the improvement in medical science has encouraged female pesticide. To stop this, the government has imposed ban on sex deduction legally, but its implementation largely has been only on paper. In states which are economically prosperous like Punjab, Haryana and Gujarat, this disparity or imbalance between male and female is more. अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो 1901 से लेके 2011 तक आप देखो तो फीमेल की पॉपुलेशन 1000 मेल के ऊपर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, तो ये सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस के वजह से माना जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या, तो इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मेल चाइल्ड का क्रेज़ जो देखा जाता है, उस रीज़न के वजह से फीमेल चाइल्ड को जो है
प्रेफर नहीं किया जाता है। इवन पीपल बिलीव दैट ना कि अगर लड़का होगा तो जो उसकी फैमिली है वो आगे बढ़ेगी, इसलिए लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। ये वाली कॉन्सेप्ट लड़कों के लिए जो क्रेज पेरेंट्स का देखा जाता है, इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं फीमेल पोर्शन जो है बर्थ राइट में कहीं ना कहीं लैक बैक हो रहा है। इवन जितना मेडिकल साइंस इंप्रूव हुआ उस पोर्शन के वजह से लोग ने क्या करना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी वो देखना शुरू हो गया कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसको नहीं रखना, अगर मेल है तो रखना है। तो ये वाला एक एडवर्स इफेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज का भी उसमें देखा गया। तब जाके गवर्नमेंट ने बैन किया कि सेक्स डिटेक्शन लीगली नहीं किया जाना चाहिए, यानी हॉस्पिटल के अंदर लड़का है कि लड़की है ऐसा चेक नहीं होना चाहिए, और जो डॉक्टर उसको बताएगा उसके ऊपर पनिशमेंट लीगली किया जाएगा और उसका डॉक्टरेट ले लिया जाएगा। ऐसा एक स्ट्रिक्ट एक्शन देखा गया। इवन ये लीगली हर जगह इम्पोज किया जाता है, बट कहीं ना कहीं पेपर के हिसाब से ये कानून पास तो हो गया, फिर भी आज भी जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस यानी पैसों के लेवल पे जहां ज्यादा अमीरी देखी जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात, तो ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं खानगी में करप्शन है ना, तो कहीं ना कहीं पैसे दे के लोग उसके बारे में जान लेते हैं। इसी रीजन के वजह से मेल और फीमेल के पोर्शन में एक इनबैलेंस देखने को मिलता है। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका जेंडर रेशियो का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। सो यहाँ पे अब हम एज वाइज पॉपुलेशन को कैसे कितने कितने एज के कितने पॉपुलेशन देखे जाते हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। Age-wise population in India refers to the classification of population in different age group. Example, the percentage of population in the age group of 0 to 14. A study of age-wise population helps in understanding aspects like working, non-working age group. एज वाइज पॉपुलेशन का मतलब क्या, इंडिया के अंदर क्लासिफिकेशन अलग अलग एज के कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल 0 से लेके 14 साल तक के कितने लोग हैं, 15 से लेके 35 साल तक के लोग कितने, 35 से लेके 50 साल तक के लोग कितने, और 50 से लेके 70 साल तक हैं कितने लोग हैं। यानी ये जो एज वाइज है ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर सकते, और कितने लोगों का काम करने की नेक्स्ट ईयर पोर्शन बढ़ने वाला है। तो इस एनालिसिस के लिए हमें एज वाइज पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल दिया गया है। टेबल जो है वो एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, तो एज ग्रुप 0 to 14, 15 to 64 एंड 65 एंड अबव, तो 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे 3 साल दिए गए 2005, 2010, 2011 एंड 2014। जब बुक छप रही थी तब एस्टिमेट करके यानी अनुमान लगा के किया गया था। आई डोंट नो ये पोर्शन सही था कि नहीं था, क्यों, क्योंकि अभी 2021 हो रहा है, 2011 के बाद इस साल सेंसस रीडिंग होगा तो हमें पता चलेगा ये पोर्शन कितना सही था। तो 0 to 14 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे 0 to 14 ईयर्स यानी बच्चे जो है वो 32.78 करोड़ देखे जाते थे। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो 30.89 यानी कि थोड़ा कम रिडक्शन उसमें देखा गया, और इसमें 30 यानी 30.5 पोर्शन देखा गया, और एस्टिमेटेड 29.21 यानी कि बच्चों की जो पोर्शन है वो कम हो रहा है, यानी 0 to 14 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही एज वाइजली धीरे धीरे कम हो रही है हमें देखने को मिला। नेक्स्ट 15 to 64 की अगर हम बात करते तो सबसे पहले 62.44 देखा गया, जो कि बढ़ते हुए 63.99 5 साल के अंदर देखा जाता है। वही 1 साल के अंदर वो 64.3 के इंक्रीमेंट में देखा गया, और एस्टिमेशन के हिसाब से 65.30 यानी 2040 में 15 से लेके 64 साल तक के जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। वही 65 एंड अबव यानी सीनियर सिटीजन, तो सबसे पहले 2005 में वो 4.78 पोर्शन तक देखे गए, और वही बढ़ते हुए 2010 में 5.12 तक देखे गए, और फिर 5.20 2011 में देखे गए, और वो भी इंक्रीज होते हुए 5.49 पे इंक्रीज है 2014 के अंदर। सो ये सेंसस रीडिंग 2011 का। इस पोर्शन में हमने ये देखा कहीं ना कहीं जो पोर्शन ऑफ 15 to 64 है वो कंटिन्यूसली हाई ग्रोथ में देखा जा रहा है, 0 to 14 है वो कम होता जा रहा है, और 65 to अबव है वो भी एक छोटे से पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। सो अब इसके ऊपर नीचे एक डायग्राम दिया गया है। सो लेट अस सी द डायग्राम इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर।
सो मैं थोड़ा डायग्राम को छोटा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए और आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। सो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर आप क्या रखोगे, सबसे पहले ईयर इंडिपेंडेंट होता है इसलिए वो एक्स एक्सिस में होगा। तो डिपेंडेंट क्या है, तो पॉपुलेशन की परसेंटेज, जो कि वो हमें कहाँ मिलेगा, तो वाई एक्सिस के अंदर मिलेगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपने लगा दिया। अब साल 2005, 2010, 2011 एंड 2014 तीन टेबल बनाना, इसलिए थोड़ा हमने तीन कॉलम का गैप लेते हुए चारों को एलोकेट कर दिया। अब अगर आप सेंसस रीडिंग की अगर हम बात करते तो 65 एंड अबव यानी हम 70 तक का पोर्शन कंसिडर कर सकते। तो परसेंटेज हमने क्या देखा, तो लास्ट परसेंटेज हमने 65 का देखा, इसीलिए हम 70 तक का पोर्शन देखेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 का हमने स्लैब बना दिया। तो 60 यहाँ पे ओके 60 का स्लैब हमने बना दिया। सबसे पहले आपको, क्योंकि ये डिवाइडेड बार डायग्राम है यानी क्लस्टर्ड बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम जो आप बोलते हो, 3 अलग अलग बार बनाना है, इसलिए हम इसको मेंशन करेंगे। 0 to 14 का शेड ये, 0 to 15, 15 to 64 का ब्लैंक एंड 65 एंड अबव का एकदम डार्क शेड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2005 का एलोकेट करेंगे, 32, फिर देखो 30 हो रहा है, 30.5 हो रहा है और 20 यानी धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये स्लाइटली कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब वही ये पोर्शन की अगर हम बात करते तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखो तो स्लाइटली ये बढ़ रहा है, पेंसिल से करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, और ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इन दिस सेंस हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये अपवर्ड रे, ये अपवर्ड रे और ये डाउनवर्ड रे की ओर जा रहा है। सो एलोकेट करके हमें ये पता चलता है कि जो पोर्शन ऑफ जो 0 to 14 ईयर्स है वो कम हो रहा है और 15 to 64 बढ़ रहा है, और जो 65 एंड अबव है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो इस तरीके से ग्राफ के थ्रू हमने एनालाइज कर दिया कि ये पोर्शन देखा जा रहा है। फिर भी हम एक एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इट इज नोन फैक्ट दैट चेंज इन डेथ रेट एंड फर्टिलिटी रेट इन्फ्लुएंसेस द एज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, which in the long run will affect the family size and the labor market in the future। so कहीं ना कहीं ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि डेथ रेट और जो कम होता है या ज़्यादा होता है या फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इस रीज़न की वजह से एज वाइज क्लासिफिकेशन जो है पॉपुलेशन का लॉन्ग टर्म के अंदर फैमिली साइज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और लेबर मार्केट के लिए फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में डेफिसिट करता है। First number in 2005, people in the age group of 0 to 14 was 32.78%, which reduced to 29.21 in the 2014, which shows a decrease in birth rate। So कहीं ना कहीं 2005 में 0 to 14% का जो बच्चे हैं 0 to 14% यानी बच्चे, तो बच्चों की जो परसेंटेज है वो 32.78 था, जो कम होके 29.21 हो रहा है। तो इसका मतलब बर्थ रेट कम हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इन द year 2005 there were 62.44 population in the age group to 15 to 64 years, which increased to 65 to 30 in the age group. Majority of the population are working population. Increase in the working population leads to economic development of the country, which is considered to be significant। so in the year 2005 अगर आप देखो तो टोटल एज जो ग्रुप है 15 to 64, तो उनका पॉपुलेशन का परसेंटेज 62.44 देखा गया था, जो कि इंक्रीज होके 65.3 यानी कि 30 यानी 3% का इंक्रीज जो है इस पोर्शन के अंदर 5 से लेके 2014 यानी 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर देखा जा रहा है। इसका मतलब अगर 15 साल से लेके आप 64 ईयर तक की पोर्शन को देखते हो यानी ये वर्किंग ग्रुप होता है, एक्टिवली वर्किंग लेबर माने जाते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा देखा जाता है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। सो यहाँ खत्म होता है एज वाइज रेशियो ऑफ द population। so आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। I hope you all have understood the portion in a very well manner। so now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen today। So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner। तो आज हमने डिटेल में जेंडर रेशियो यानी सेक्स रेशियो के बारे में डिटेल में देखा, उसकी टेबल के बारे में अच्छे से समझा, उसके बाद हमने एज वाइज पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कैसा देखा जाता है उसके बारे में डेटा और उसके बारे में एक टेबल के बारे में डिटेल में एनालाइज और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन देखा।
I hope you all have understood the portion, but let us have a short summarization of the topic. So gender ratio की अगर हम बात करते क्यों इंडिया के अंदर मेल और फीमेल के बीच में इतना एक वास्ट डिफरेंस देखा जाता है. सो कहीं ना कहीं एशियन टाइम से ही अगर हम बात करते लड़कों के लिए जो क्रेज देखा जाता था, यानी लड़के कहीं ना कहीं फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी पोर्शन कहीं ना कहीं बिलीव किया जाता था. उस रीजन की वजह से पुराने समय से ही लड़कियों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता था. उनका एजुकेशन, उनकी न्यूट्रिशन, फूड और उनकी हेल्थ, ये सारी चीज़ों के ऊपर कम ध्यान देने की वजह से, रदर देन दैट डाउरी सिस्टम जो हमें दहेज देना पड़ता है, उस वजह से लोगों ने लड़की पैदा करने से भी मुंह मोड़ लिया, ये हम बोल सकते. तो वो वाला पोर्शन ने भी कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ रेट फीमेल का कम किया. उसके अलावा अर्ली मैरिज, जल्दी शादी करवा देना, चाइल्ड बर्थ देते हुए लड़कियां मर जाती थी. सो कहीं ना कहीं लोग उसको प्रेफर भी नहीं करते थे और दूसरी चीज़ जल्दी वो मर भी जाते थे. तो ऐसे सारे हाई डेथ रेट की वजह से और कम बर्थ रेट की वजह से फीमेल पोर्शन के अंदर कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ये जो पोर्शन है ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जो है देखा नहीं गया. उसके बाद हमने एक टेबल देखा, जो टेबल 1901 से लेके 2011 तक का टेबल, इंडिया के अंदर फीमेल का रेशियो पर 1000 मेल कितना था और गुजरात के अंदर पर्टिकुलरली कितना था, ये पोर्शन बता रहा था. जिसमें से 1901 की अगर हम बात करते हैं या 1951 या 01 की अगर हम बात करते हैं, 1901 से था, तो 1901 का जो पोर्शन है वहाँ पे इंडिया के अंदर 1972,000 मेल के लिए 1972 फीमेल पाए जाते थे. वही गुजरात के अंदर 1000 मेल के लिए 1954 फीमेल पाए जाते थे. वही जब 1991 यानी 40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे कम होता गया. सो 1941 के अंदर 1972 में से फीमेल 1000 मेल के ऊपर 1927 में आ गए थे. यू कैन सी 72 में से 27 आ जाना, यानी कितना 50 के अबाव, इतने 40 साल के अंदर 50 से भी ज़्यादा फीमेल कैटेगरी की रिडक्शन देखा गया. और वही गुजरात के अंदर 1954 से 1936 यानी यहाँ पे भी डिक्रीज ही देखा गया था. बट 1951 के बाद कहीं ना कहीं जो पोर्शन है 2001 एंड 2011 में 1933 इंडिया के अंदर और टोटल इंडिया के अंदर और 2011 में 1940 के ऊपर इंक्रीमेंट देखा गया, यानी 1927 से 1933 और 1940 2001 और 2011 में देखा गया. जबकि गुजरात के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यूस रिडक्शन ही होता गया. 1936 से भी 1918 तक फीमेल जो है रिडक्शन में देखा गया. सो इसकी एनालिसिस के ऊपर हमें ये पता चला है कि धीरे धीरे 1901 से लेके 1991 तक कंटिन्यूस रिडक्शन ओवरऑल इंडिया के अंदर देखा गया. बट कहीं ना कहीं 2001 से इंक्रीज हुआ, 1927 से 1933 हुआ, फिर 1940 हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट से जो कंटिन्यूस रिडक्शन देखा जा रहा था, उसके लिए बेटी बचाओ का एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया. थैंक्स टू दैट प्रोग्राम, इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट जो है फीमेल कैटेगरी का ओवरऑल इंडिया के अंदर जेंडर रेशियो में इंक्रीज देखा गया. बट गुजरात के अंदर अगर हम बात करते तो 1901 से लेके 2011 तक कंटिन्यूअस रिडक्शन ही देखा गया है. क्यों? तो उसका बेसिक रीजन एज आई सेड, तो क्रेज फॉर द बॉयज इन द फैमिली ये ज़्यादा देखा गया. इस रीजन की वजह से जो मेडिकल फैसिलिटी की वजह से सेक्स डिटेक्शन जो देखा जाता था, पेट में ही बच्चा मेल है कि फीमेल है, ये जो डिटर्मिनेशन किया जाता था, उसको लीगली गवर्नमेंट ने बैंड भी किया. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा. ऐसा लीगल पेपर के थ्रू ऐसा एक कानून पास हुआ. फिर भी कुछ प्रॉस्परस कंट्री स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये लोगों ने कहीं ना कहीं लीगली ये पोषण होने के बावजूद भी चोरी चुपके करप्शन के थ्रू ये चीज़ें किया. इसी रीजन की वजह से ये इम्बैलेंस मेल और फीमेल के बीच में देखा जाता है. इस तरीके से यहाँ पे हमने जेंडर रेशियो के बारे में कंप्लीट किया. नेक्स्ट हमने देखा एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया. एज वाइज पॉपुलेशन का मतलब क्या? एज वाइज पॉपुलेशन का मतलब पर्टिकुलर एज के कितना पॉपुलेशन देखा जाता है. आपको पता है बच्चे होते हैं, ठीक है, जवान होते हैं काम करने वाले, फिर आते हैं सीनियर सिटीजन यानी कि जो ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन यानी आप बोल सकते हो 65 के अबाव वाले लोग, ठीक है, जो बुजुर्ग है और को कुछ काम नहीं कर सकते, जिनकी सेवा बच्चों को करना पड़ता है. ऐसा 3 कैटेगरी में हर एक कंट्री में देखा जाता है. तो उसी स्लैब के हिसाब से जब देखा जाता है उसे एज वाइज पॉपुलेशन इंडिया के अंदर माना जाता है, जिसके अंदर 0 to 14 का पोर्शन,
15 to 64 एंड 65 एंड अबाउ का पोर्शन देखा जाता है। अब ये जो पोर्शन है, अगर ये पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो 19 जो 2005 से लेके 2014 तक का 2014 का एस्टिमेशन दिया गया है, 2011 की सेंसस रीडिंग में से ये टेबल दिया गया। सो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 0 to 14 पोर्शन जो 2005 में कितना था, तो 32.78% टोटल पॉपुलेशन में से 0 से लेके 14 साल के बच्चे पाए जाते थे। वही 2014 का जो एस्टिमेशन है उसमें वो 29.21 हो गए, यानी कि एक मेजर रिडक्शन इस पोर्शन में देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि लोगों का फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुआ इस रीजन की वजह से, यानी बच्चे कम बर्थ रेट में देखे गए थे, बर्थ रेट में एक डिक्रीज देखा गया इस रीजन की वजह से एज ग्रुप जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। बट सेकेंड एनालिसिस में हमने ये देखा कि 15 से लेके 64 का जो पोर्शन है वो पोर्शन 2005 में जो है 62.44 देखा जाता था, जो कि बढ़ के 65.30 यानी 3% का इंक्रीज इस एज वाइज कैटेगरी में देखा गया था। और ये जो पोर्शन होता है 15 से लेके 64 ईयर्स तक के लोग, ये वर्किंग लेबर माने जाते हैं, एक्टिव, ये लोग काम करने के लायक होते हैं, अर्निंग पीपल होते हैं। अगर ऐसा एज ग्रुप बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये पोर्शन बहुत ही हेल्प आउट करेगा, ये माना जाता है। सो ये पोर्शन यहाँ तक हमने डिटेल में देखा और इसमें हमें ये एनालाइज करके मिला कि सीनियर सिटीजन और 15 टू 64 है, 65 एंड अबव एक छोटे से पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, बट 15 टू 65 जो है एक हाई लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, बट 0 to 14 बर्थ राइट के डिक्लेन की वजह से वो कम इंक्रीज हो रहा है और ऊपर से डिक्रीज हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एज वाइज पॉपुलेशन कंप्लीट होता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में आज देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.